आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन आज की अहम खबरों के साथ। स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। डेकोर वॉलपेपर। आरएलके नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएलके नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। द जायका फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। ग्लोबल वॉलपेपर। आइए ले चलते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। कोयला तस्करी के मामले में अनुव्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन को आज आसनसोल की सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां उनके वकील ने जमानत के लिए आवेदन किया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया और अगली सुनवाई 22 तारीख तय की। सहगल हुसैन के वकील ने कहा कि वे महामुहिम अदालत से अनुरोध किया कि इस मामले में मुख्य आरोपी को 32 दिनों के बाद जमानत मिले। इस मामले में सहगल हुसैन, जिनका नाम पहली प्राथमिकी में नहीं था, को जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया और अगली सुनवाई की तारीख 22 जुलाई तय की। তিনি 32 দিনের মাথায় জামিন পেয়েছিলেন, সেই জন্য আমরা একটি স্পেশাল সার্কামস্টেন্সেস দেখিয়ে ওনারা যে জামিনের আবেদন করেছিলাম সাইগল হোসেনের, যেটা অনারেবল কোর্ট টার্ন ডাউন করেছেন এবং উনি রিজন দেখিয়েছেন যে এখনো পর্যন্ত ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন ইজ গোয়িং অন এবং ওনার কাস্টোডিয়াল ইন্টারোগেশনের প্রয়োজন আছে। তাই জন্য জামিনের আবেদন খারিজ করে আগামী 22 তারিখ আবার শুনানির সুযোগ দিয়েছিল। 22 তারিখ তো ডেটই ছিল, 22 তারিখ যে আগামী 22 তারিখ ডেটই ছিল, সেই তারিখেই শুনানির সুযোগ দিয়েছে। সিবিআই কি আবার পুরো নতুন নথি সিবিআই তরফ থেকে দুটো নথি জমা পড়েছে, যেগুলো পুরনো সম্পত্তিরই তারই নথি এডিএসের মানে রেজিস্ট্রি অফিস থেকে কালেক্ট করে ওনারা জমা দিয়েছে। তো আমাদেরও বক্তব্য এটাই ছিল যে যেগুলো এখন যে কালেকশন অফ এভিডেন্স হচ্ছে সেগুলো সবটাই হচ্ছে সাইগল হোসেনের কাস্টডিতে না থাকলেও এই কালেকশনগুলো সম্ভব, কারণ সবই সরকারি অফিস থেকে কালেকশন হচ্ছে। তো সেইগুলোর জন্য এনার কাস্টডিতে থাকা প্রয়োজন নয়। এবার অনারেবল কোর্ট রিজেক্ট করেছেন এই মুহূর্তে এবং বলেছেন আগামী 22 তারিখ শুনানি। তারা বলেছে টেম্পার করা যেতে পারে। না, এরকম কিছু বলেন না। সাইকেলের যে সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিগুলো ইয়েকে নিজের সরকারকে কি বা নিজের যে কর্মস্থল সেখানে জানাবার কথা, সেগুলো কিছু জানায়নি, এরকম কোনো তথ্য? না, এরকম কিছু আসেনি। ওনাদের আজকে আরেকটা তথ্য ওনারা জমা দিয়ে ওনার সার্ভিস বুক জমা দিয়েছে, মানে ওই যে সরকারি কর্মচারী সেটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য ওনার সার্ভিস বুকটা জমা দেওয়া হয়েছে। প্রিন্সিপাল অ্যাকিউজড কারা, যাদেরকে 32 দিনের মধ্যে জেল দেওয়া হয়েছে? একজনই এর মধ্যে প্রিন্সিপাল অ্যাকিউজ, মানে অর্থাৎ এফআইআর নেম অ্যাকিউজ, যিনি ওই সতীশ কুমার, যার নামে এফআইআর হয়েছিল, তিনি 32 দিনের মাথায় জামিন পেয়েছিলেন। এই কেসে অ্যারেস্ট হয়েছিলেন এবং 32 দিন বিএসএফ এর কমান্ড্যান্ট ছিলেন, তিনি অ্যারেস্ট হয়েছিলেন এবং 32 দিনের মাথায় জামিন হয়েছিলেন। সেই প্লেটাই আমরা নিই যে 32 দিনের মাথায় যিনি এফআইআর নেম অ্যাকিউজ জামিন পেয়েছেন, তাহলে সাইগল হোসেন, যার এফআইআর এর নাম নেই, যার 3টে চার্জশিট হওয়ার পরে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তাহলে তিনি কেন তাকে ওই গ্রাউন্ড অফ প্যারিটিতে আমরা বেল পেয়েছি। সাইকেল কিন্তু 39 দিন হয়ে গেল প্রায়। হ্যাঁ, ছিলেন যে কেন্দ্র সরকারের যারা অভিযুক্ত তাদেরকে কিছু করা হচ্ছিল না, রাজ্য সরকারের কর্মী তাকে এটা আমি আগের দিন বলেছিলাম, আজকে আগের দিন বলছিলেন। তারপর দেখা গেল সিবিআই প্রচুর ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের জিএম থেকে শুরু করে অনেককেই অ্যারেস্ট করেছে। কি বলবেন? सुबुद्धि संपन्न হচ্ছেন ওনারা, আর কি বলবো। रानीगंज के टीडीबी कॉलेज में मंगलवार को छात्रों के बीच हुए एक विवाद के चलते घमासान मच गया। इस संदर्भ में पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के महासचिव प्रेम बैनर्जी ने कहा कि मंगलवार को टीडीबी कॉलेज के सेकंड ईयर के कुछ लड़कों के बीच किसी बात पर वाद विवाद हुआ। जब उनको इस बात की जानकारी दी गई तो उन्होंने इस मामले को आपस में ही सुलझा लेने का मशवरा दिया, लेकिन कुछ देर बाद देखा गया कि रेहान साकिब, संदीप गुराई, अजीत सिंह, तन्मय डांग जैसे कुछ बाहरी लड़के जो सालों पहले कॉलेज से पास कर चुके हैं, वो लाठी डंडों के साथ आए और कहा कि वो जूनियर छात्रों की पिटाई करेंगे। प्रेम बैनर्जी ने कहा कि उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने जूनियर छात्रों की पिटाई शुरू कर दी। इसमें शिवम लाहा सहित कई छात्र घायल हो गए। 2 छात्र बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। प्रेम बैनर्जी ने कहा कि जिनकी पिटाई की गई है वो सभी
टीएमसीपी के हैं। उनका आरोप है कि जिन्होंने इन छात्रों की पिटाई की है वो बहुत पहले ही टीडीबी कॉलेज से पास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां कॉलेज में आते जाते रहते हैं। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। कॉलेज में आज सुबह सुबह जो जूनियर लोग था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर का 2-3 लड़का था, वो लोग गया था कॉलेज। तो बाहर का जो लड़का लोग कॉलेज में रेगुलर आता जाता रहता है, 2012-13 से आता जाता रहता है, वो लोग लड़का लोग टीडीबी कॉलेज में रेगुलर था। और फर्स्ट ईयर के साथ सेकेंड ईयर का कोई बाताबाती हुआ था। उस बाताबाती में हम तब जाके प्रेजेंट हुए, तो मेरा जो जूनियर है सेकेंड ईयर का, वो बोला कि भैया मेरा बाताबाती हुआ। हम बोले जूनियर लोग में बाताबाती हुआ है, स्टूडेंट लोग छोटा लड़का है, अपने में सॉल्व कर लो, झमेला बड़ा का मत करो। फिर हम ब्लॉक ऑफिस में घुसे। जो बाहर का लड़का था, रेहान जितना लड़का था, वो लोग मेरे को बोला कि उसको मारेंगे। हम काहे मारेगा, तेरा तो राइट नहीं कोई मारने का जूनियर लड़का लोग मारेगा, सीनियर लड़का लोग काहे मारेगा, तो कॉलेज का पास आउट है, कॉलेज में आता जाता नहीं है, तेरा स्टूडेंट नहीं है। बोला नहीं मारेंगे। बोलते तुरंत मार दिया। इतना मारा है, निकलते मारा है। फिर गेट में इतना मारा, रॉड से लेके माथा में मारा है। 2 लड़का अभी हम लोग एडमिट है। जिसको मारा क्या नाम उसका? जिसको मारा শিবম লাহা। কজন ছাত্র ইনজুর্ড আছে? 2 জন ইনজুর্ড আছে, 2 জন গুরুতর ইনজুর্ড আছে, 4 জন আরো ভর্তি হয়েছে ওখানে। হসপিটালাইজ কজন? 2 জন। টোটাল 6 आदमी को इंजर्ड ব্রেনে লেগেছে, ব্রেনে। টিটিভি কলেজ প্রিমিসিসে এই যে কি নিয়ে শুরু একটা ছোট মতো বচসা হয়েছিল, কি নিয়ে বলছে যেটা স্টুডেন্ট পড়ে যেগুলো কলেজে তাদের মধ্যে, তো সেটা অলরেডি শর্ট হয়ে গেছিল 1 ঘন্টা আগেই। তারপরে ওরা আবার ঝামেলাটা শুরু করে এবং যারা বহিরাগত তারা মারপিটটা করে এসে। বহিরাগতদের মধ্যে কে মারপিট? বহিরাগতদের মধ্যে রেহান সাকিব ছিল, সন্দীপ বরাই ছিল, অজিত সিং ছিল, রাজা রোহিত দত্ত ছিল, তন্ময় ঢাং ছিল। আলটিমেটলি পাস আউট কলেজ। এরা এভরিवन पास आउट, इवन एरा पास आउट हो चुके 2014-15 से पास आउट है। तो फिर कॉलेज में वो लोग क्या कर रहा था? वो लोग कॉलेज में आता है, बैठता है, अड्डाबाजी करता है। এটা কি নিয়মিত করে তারা? अच्छा, वो लोग जो मारा है वो लोग कौन सा पार्टी करता है? वो लोग पार्टी तृणमूल कांग्रेस का है कि नहीं है कि वो लोग का जाने है वो लोग, लेकिन वो लोग जो मारा है वो लोग कॉलेज में रहता था, एनी टाइम रहता है। जो मार खाया वो कौन सा पार्टी कर रहा और वो जीडीबी कॉलेज टीएमसी का सदस्य है, टीएमसीपी का छात्रों का। है? क्या नाम है आपका? শিবম লাহা। আমি পশ্চিম বর্ধমান প্রেম ব্যানার্জি, क्या जी पद में? पश्चिम बर्धमान तृणमूल छात्र परिषद का साधारण संपादक। आसनसोल के प्रख्यात व्यवसायी और समाज सेवी सुब्रतो उर्फ मिठू घाटी के बेटे की शादी के उपलक्ष्य पर आज उन्होंने एक अनोखी पहल की। उन्होंने आज ढाकेश्वरी वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को दोपहर का भोजन करवाया। आपको बता दें कि ढाकेश्वरी वृद्धाश्रम में कुल 25 बुजुर्ग रहते हैं। आज मिठू घाटी की पहल पर इन सभी बुजुर्गों को और इस वृद्धाश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों को दोपहर का भोजन कराया गया। दरअसल सुब्रतो घाटी का कहना है कि जब भी किसी परिवार में किसी की शादी होती है तो अमूमन लोग मेहमानों को बुलाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनके बेटे और बहू का विवाहित जीवन इन बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ शुरू हो, जिनको उनके अपने ही परिवार वालों ने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ऐसा करके वो इन बुजुर्गों के जिंदगी में पल भर के लिए ही सही लेकिन खुशी के कुछ पल लाना चाहते थे। इससे उनके दिलों को जो खुशी मिलेगी और उसके बाद ये बुजुर्ग उनके बेटे और बहू को जो आशीर्वाद देंगे, उनको पूरा विश्वास है कि इससे उनके बेटे और बहू का आगामी जीवन सुख और समृद्धि से भरा होगा। इस मौके पर यहाँ मृणाल मुखर्जी, आशीष चैटर्जी सहित इस वृद्धाश्रम के तमाम बुजुर्ग निवासी और कर्मचारीगण उपस्थित थे। আজকে বৃদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধদের খাওয়ানো হচ্ছে, কি ব্যাপারে, কি উদ্দেশ্য? বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঠু ঘাটি উনি আজকে আমাদের বৃদ্ধাশ্রমে খাওয়া দাওয়া করাচ্ছেন। ওনার ছেলের বিয়ে আজকে, সেই উপলক্ষে আমাদের বুড়া বুড়ি এমনকি আমরা যারা কাজ করি তাদেরও খাওয়াচ্ছেন। ওনার ছেলের বউকে আমরা আশীর্বাদ করছি সবাই, যাতে ওনারা সারা জীবন সুখে শান্তিতে বাস করেন। জায়গার নামটা কি? জায়গা সূর্যনগর, ঢাকেশ্বরী কটন মিল, প্রান্তিক ওল্ড এজ হোম। অর্চনা ঘোষ। অঞ্চলের বিখ্যাত সমাজসেবী এবং ব্যবসায়ী মিঠু ঘাটির ছেলের আজকে বিয়ে, সেই উপলক্ষে প্রচুর মানুষকে তো অনেকে সবাই খাওয়ায়। এই বৃদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধাবৃদ্ধদের কেউ কিন্তু অতটা খেয়াল রাখে না। তাই ওনার ইচ্ছা যে আজকের দিনে এনাদের একটা নবদম্পতি যাতে আশীর্বাদ পায়, তাই আশীর্বাদও পাওয়া হলো এবং এদের পেট ভরে খাওয়া দাওয়া করানো হলো। এবং সাধু সন্ন্যাসী যারা আছেন তাদেরও আজকে নিরামিষের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, অনেক সাধু এসছে মন্দিরে,
তাদেরও খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে নিরামিষ। আর এখানে তো মাছ ফাছ দিয়ে যেটা করে সেটাই করেছি, যাকে আশীর্বাদটাই কাম্য ছিল, পেয়েছি। এবং আমারও খুব ভালো লেগেছে, মিঠুদার হয়ে আমি এখানে এসেছি কাজ করতে, এদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা আমিই করেছিলাম। তো ভালো হয়েছে, ভালো ক্যাটারিং পেয়েছিলাম, একটা খুব ভালো কাজ হয়েছে। আমরা খুব कुल्टी थाना अंतर्गत बीसीसीएल की दामागोड़िया कोयला खदान से सटे बरीरा क्षेत्र से सीआईएसएफ व चौरंगी फाड़ी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर फायर क्ले पत्थरों से लदे 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। ट्रैक्टरों को जब्त कर चौरंगी चौकी लाया गया। चौरंगी चौकी की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। समाचार सूत्रों के अनुसार ट्रैक्टरों में फायर क्ले पत्थरों के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं मिला है, लेकिन इस घटना में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये थे आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स, ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी नजर रखें। हमारा वेबसाइट है www.asansoltimes.co.in। धन्यवाद।